Good morning, students, and welcome to the world of physics. Dear students, last we discussed about viscosity, the viscous force, or you can say viscous drag, right? And the formula of that viscous drag, it was given by Stokes, right? That is 6 pi eta into r into v, right? And then we discussed about one velocity, right? It is known as the terminal velocity. The value of the terminal velocity, it means what is terminal velocity? The maximum velocity. At that time, the downward force is equal to the upward force, means there will be no any increment or no any change in velocity after the terminal velocity. Acceleration will be 0 and the velocity will be constant, right? So one more thing we have to learn, that is a Reynolds number. It is very easy concept, dear students. But first of all, just focus over here, right? Let's take one example. Suppose we have one colony, right? We have one colony, and in this colony we have total 5 houses, right? अगर 5 घर है समझो, and every house is getting a water through pipeline, right, which is connected with the pump. यहाँ पर कोई पंप है, ये पंप की वजह से सभी घर में यहाँ से पानी आ रहा है, समझो, right? Now suppose at this time we are getting 1000, the water we are getting, that is 1000 liter per hour, right? 1000 liter per hour, we are getting 1000 liter per hour. एक घंटे में हमको 1000 लीटर मिल रहा है, 1000 लीटर, right? Now समझो कि घर बढ़ गए. If the number of waters are increased, right, what will happen? What will happen? Definitely the requirement of water is more, right? Now घर बढ़ गए, हमारे पास अभी तक 1000 लीटर पर आवर आता था इस एंड पे थ्रू दिस पंप. अब हमको 1000 सफिशिएंट नहीं होगा, राइट? दैट शुड बी अ इंक्रीमेंट. अब 10 घर बढ़ गए हैं या 15 बढ़ गए, जो भी इंक्रीमेंट हाउसेस में हुआ है, अगर रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो इसकी भी ज़रूरत ज़्यादा है. तो 1000 लीटर पर आवर इज़ नॉट सफिशिएंट. नाउ सपोज वी वांट 2000 लीटर पर आवर. एक घंटे में हमको 2000 चाहिए, 2000 इज रिक्वायर्ड, राइट? 2000 liter per hour is required. Now see, this is the volume, right? 2000 liter per hour is volume, right? It is required at this end. So what we will do, अगर हमको 1000 लीटर एक घंटे में यहाँ से 1000 लीटर आ रहा है एक घंटे में, अगर एक ही घंटे में 2000 लीटर चाहिए, what we have to do? We have to increase the velocity of this fluid, right? Simple. इतनी इसकी स्पीड थी, इतनी स्पीड से वो 1000 लीटर पर आवर, एक घंटे में 1000 लीटर यहाँ से निकल रहा था इतनी स्पीड के साथ. अगर 2000 चाहिए, डेफिनेटली दिस वेलोसिटी शुड बी इंक्रीज्ड, राइट? हमको करना क्या है? वी शुड इंक्रीज द वेलोसिटी. नाउ व्हाट विल हैपन? चलो ठीक है, कुछ वेलोसिटी हमने इंक्रीज कर दी, यहाँ पे पंप थोड़ा सा इंक्रीज किया प्रेशर, तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से वी आर गेटिंग सफिशिएंट 2000 लीटर पर आवर. ओके, सो वी हैव ओनली थिंग to do to get a more amount of water per hour is we can increase the velocity, right? But one more thing is coming. Just remember the concept. The first we studied about streamline flow and turbulent flow, right? We are aware अगर कुछ velocity के साथ चल रहा है, normal velocity, what is streamline flow? The every particle moving with the same velocity, right? Every particle will move with the same velocity. Each particle will move with the same velocity. But if the turbulent flow is there, the velocity of this particle is different than this. It is different than this. It is different than this, right? They will not move with the same velocity. So what will happen, right? समझो कि अगर velocity increase हो रही है, जब तक ये एक साथ सेम स्पीड पर चल रहे थे, एवरी पार्टिकल वो मूविंग विद द सेम स्पीड, वी कैन से इट वाज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. इट वाज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. देन इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी, देयर विल बी अ सर्टेन चेंजेस इन रिलेटिव वेलोसिटी, राइट? तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइट? द अमाउंट ऑफ दैट वेलोसिटी, द प्रॉपर अमाउंट दैट वेलोसिटी, समझो यहाँ से ऊपर तक जो था वो स्ट्रीमलाइन फ्लो था, right? And after this amount of velocity, it becomes turbulent velocity, right? Or turbulent flow. So this velocity, right? This velocity, after that
our flow is converted, it is turned into a turbulent, that is known as a critical velocity. This is known as a critical velocity. समझो, मतलब कि हमारी रिक्वायरमेंट 2000 लीटर पर आवर है, उसके लिए हमको वेलोसिटी बढ़ानी है, बट हमको ये भी देखना है कि वेलोसिटी उतनी लिमिट तक बढ़ाओ कि हमारा फ्लो स्ट्रीमलाइन ही रहे, टर्बुलेंट नहीं हो जाए. अच्छा, टर्बुलेंट क्यों नहीं होना चाहिए? वी नो दैट इफ देयर इज अ टर्बुलेंट फ्लो, समझो ये सब पार्टिकल फ्लो हो रहे थे, टर्बुलेंट फ्लो है तो इसकी वेलोसिटी व्हाट इट डज, इट ट्राई टू ओवरटेक दिस वन. अगर ये इसको ओवरटेक करेगा तो यहाँ पर प्रेशर लगाएगा, नीचे वाला यहाँ पर प्रेशर लगाया, एवरीथिंग राइट. सो पाइप पर प्रेशर ज्यादा लगेगा एंड देयर विल बी अ चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द पाइप, राइट. पाइप में ब्रेक, इट में डैमेज, राइट. तो एक ही कंडीशन है. वन मोर थिंग, वी वांट 2000 लीटर पर आवर, हमको क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, बट कुछ लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं. कितनी लिमिट तक? इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी तक ही बढ़ा सकते हैं, right. If it cross its critical velocity, then our flow will converted into turbulent flow and that is why pipe will may damage, right. So अगर ये चीज ना हो, मतलब कि हमारा स्ट्रीम लाइन ही रहना चाहिए, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, अगर ये केस चाहिए, so engineers are doing some calculation, right. Engineers are doing some calculation in the world, right. वो चेक कर रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी है, जो पाइप में से जो फ्लूइड बह रहा है, जो वाटर फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, राइट. सो फॉर दैट दे डू वन कैलकुलेशन. दैट कैलकुलेशन इज लाइक दिस, इट इज रो वी डी अपॉन ईटा. सिंपल कैलकुलेशन, राइट. सम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दैट इज रो वी डी अपॉन ईटा. रो मीन्स व्हाट? दिस इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी मीन्स वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डी मीन्स डायमीटर ऑफ pipe, right. And eta, you know that it is a coefficient of viscosity, right. Rho vd upon eta, right. This is density, velocity, diameter of pipe and eta. and ये जो इसका जो नंबर मिलता है, इस नंबर को नाम दे दिया है हमने Rn और Re, जो भी बोलो Re, right. This is known as a Reynolds number. This is known as a Reynolds number. Reynolds जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कैलकुलेशन दी थी, how we can measure either the flow is streamline or it is turbulent. Simply it is depend on velocity. एक ही बात है, turbulent हो या streamline हो, किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पर. वेलोसिटी अगर लिमिटेड है, कुछ हद तक है, तो स्ट्रीमलाइन है. अगर ज़्यादा बढ़ गई तो टर्बुलेंट हो जाएगा. टर्बुलेंट हो जाएगा तो पाइप ब्रेक हो जाएगी. ये सारे प्रॉब्लम्स है, राइट. सो हमारा एक ही ऑप्शन है कि हम स्ट्रीमलाइन ही फ्लो होना चाहिए. सो फॉर दैट वी आर डूइंग वन कैलकुलेशन, दैट इज रो वी डी अपॉन ईटा. इसका जो आंसर मिलता है, द नंबर वी गेट, इट इज नॉन एज ए रेनोल्ड नंबर, राइट. हियर सी, रो इज कांस्टेंट, ईटा इज कांस्टेंट. वी कैन चेंज आइदर वी और आइदर डी, राइट. दिस इज डायमीटर और वी. फोकस समझो, इस पाइप में मुझे कोई चेंज नहीं करना है. पाइप में हर बार नहीं डाल सकता, मतलब चेंज नहीं कर सकता हर बारी. तो क्या करते हैं? वेलोसिटी इंक्रीज करें. समझो, इफ वेलोसिटी विल इंक्रीज, हियर आर ई इज प्रोपोर्शनल टू वी, राइट. सो इफ वी विल इंक्रीज, आर ए विल इंक्रीज. तो उन्होंने, रेनोल्ड ने एक कंक्लूजन दिया. इफ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, राइट, अगर ये हमने कैलकुलेशन की, इसका आंसर सपोज इट इज लेस देन 1000, इफ आर ई इज लेस देन 1000, आर ई इज लेस देन 1000, देन आर फ्लो इज स्ट्रीमलाइन. अगर ये कैलकुलेशन का आंसर लेस देन 1000 आया, देन आर फ्लो इज स्ट्रीमलाइन. सपोज आर ई इज ग्रेटर देन 2000, देन इट बिकम टर्बुलेंट, राइट. इफ इट इज लेस देन 1000, देन स्ट्रीमलाइन. आर ई इज ग्रेटर देन 2000, इस कैलकुलेशन का आंसर 2000 से ज्यादा आया तो टर्बुलेंट हो जाएगा. अच्छा, 2000 कब आएगा? व्हेन वी इंक्रीज द वेलोसिटी. एज वी इंक्रीज द वेलोसिटी, दिस नंबर विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट. नंबर विल ऑल्सो इंक्रीज. एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये कैलकुलेशन का आंसर ग्रेटर देन 2000 हो जाएगा. देन आर आंसर बिटवीन 1000 एंड 2000, राइट. अगर कुछ समझ लो कि आंसर हमको 1300 आया, पूरा आंसर 1300 आया, देन इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट, राइट. इट इज अ कॉम्बिनेशन, और यू कैन से मिक्सचर ऑफ स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो.
इसके बीच में अगर आंसर मिलता है देन इट विल बी द मिक्सचर ऑफ स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट, मतलब जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें हम बोल सकते हैं वो स्ट्रीमलाइन भी है और थोड़ा बहुत टर्बुलेंट भी है। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होगा कहाँ तक कर सकते हैं, इसमें रिस्क है। समझो इफ आर इज लेस देन 1000 मतलब कि हमारा फ्लो बिल्कुल सेफ चल रहा है, पाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रीमलाइन है। अगर 1000 से इंक्रीज हो गया देन वी कैन से देयर विल बी अ प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत रिस्क है, राइट। एंड इफ विल क्रॉस 2000 it will totally damage because our fluid, the flow of fluid will converted into turbulent completely, right? So this is about the Reynolds number. The simple, it is used for MCQs, right? If it is greater than 2000 turbulent, less than 1000 it is streamlined, right? So one more calculation we can do this. Suppose we have equation RE that is equal to R suffix E that is equal to rho VD upon eta. What I do, I can write the same thing like this, rho into V, right, multiply with V and divide with V, right, D was here eta. See, rho V square multiply with the velocity, I can write like this eta, this V, I can take this D below this V, right? So answer is rho V square upon eta into V upon D. One more thing I can do, multiply this whole thing with area and divide by area, right? So we get rho A into V square divide by eta into A into V by D, right? This is known as the inertial force, right? And the denominator shows the force of viscosity. So this is the inertial force divided by force of viscosity. Clear? So this is just for information, right? It is not that much important, but this is just for information how the Reynolds derived this equation from this question, right? Inertial force divided by force of viscosity. So this is very important point just to remember like this only, right? It is not much more important theory for exam point of view, but you have idea about this. If it is greater than 2000 the flow is turbulent, less than 1000 streamlined, right? And it is derived by this equation, inertial force divided by force of viscosity. So hope all of you are clear. This is a little topic, right, for that can be asked in a MCQ. Hope all of you are clear. Practice well and all the best. Thank you very much.